Hello, namaskar and welcome to Source Astrology video number 50। 50वां वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो ये 50 वाला वीडियो नहीं है, हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसके अंदर पार्ट्स में थे। सो लाइक इफ यू हैव समथिंग दैट वीडियो पार्ट ए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे भी करेंगे, बट एनीवे this is the 50th video, 50th thing which I have subbed on a particular subject I am doing. So we have crossed half century. Thank you so much. Thank you so much to many people who have been continuously watching my video. Without your views, without your comments, I think it added a lot of motivation to it. And I have a surprise for you today at the end of the video. But today's video is a kind of a miraculous video. It is a kind of a magical video. It's a jadoo of astrology. I am going to show you an angle. If you ever understand it, by the way, it is very difficult. It is very easy to understand. बहुत easily शायद मैं बता दूंगा इस चीज को. But understand one thing, it is very difficult to follow in life actually. But सारी जितनी भी theories हैं इसकी, अगर आप इनके अंदर रेमेडीज भी करना चाहते हैं, कुछ प्रेयर्स भी करना चाहते हैं, कुछ करेक्शंस लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, इफ यू इवन अंडरस्टैंड आयोटा ऑफ दिस मैजिकल प्रिंसिपल व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. यू कैन ब्रिंग अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन योर लाइफ, maybe in one aspect of the life, maybe in various aspects of the life. So this is it. And another thing I'm going to tell you, please do share this video if you want really this world, ये जो हमारी पृथ्वी है जिसमें हम आए हैं, this is a magical world. अगर आप इस पृथ्वी में कुछ बदलाव चाहते हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, ओके? बिकॉज मैं एक अपने गुरुजी का वीडियो देख रहा था, बिकॉज प्रोफेसर केन राव वाज सेइंग समथिंग एंड ही सेड दैट वी आर इन ए वेरी ब्रिलियंट टाइम. उन्होंने बोला, he was telling about a story of Parashara Muni, and he was telling that according to Parashara Muni, Kali Yuga is the best time. यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल अपने आप को अलाइन करोगे ना, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल अलाइन करोगे, your journey, your spiritual journey, or the things which are connected across to you will be much more faster. So don't worry, even if there is so much chaos, if there is missing clarity, if there is some problem happening in your life at the moment, do not worry. Always remember, source is the source of everything, and source is the source of love, forgiveness, compassion, light. Source is the source of healing, source is the source of money, finance, health, every aspect of your life. Only you have to be there. You have to be more aware. You have to be more ready. You have to be ready to catch this thing. And today I am going to give you a magical, एक जादू वाला secret, एस्ट्रोलॉजी के अंदर. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट. मैंने अभी तक हाउसेस के बारे में डिटेल नहीं शुरू किया. आई एम गोइंग अबाउट टू इन सम वीडियोस, आई एम गोइंग टू अबाउट टू इवन स्टार्ट ऑन द डिफरेंट राशिस एंड द भाव. At the moment, I'm trying to build, and I have already given many technicals videos. I'm connecting astrology with cosmology, various kinds of point I'm trying to give. Today, I am trying to go a little bit further. मैं आपको हाउसेस के अंदर कुछ मिरेकल्स बताऊंगा, ओके? एंड ऐसी एक मिरेकल बताऊंगा, आप सिर्फ इसकी कनेक्शंस एक बार समझने की कोशिश करिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस इन बिटवीन. एंड इफ यू आर रेडी, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग व्हिच इज लाइक, just apply it, okay? Now this is about the second house from any house. I'm repeating again, this is about second house from any house, okay? ध्यान से सुनिएगा, ये कोई भी हाउस से जो दूसरा वाला हाउस है उसके बारे में. any house from any house which is second from any house is the resource of that house. उस हाउस का रिसोर्स है. जो भी घर है वो अपने से उससे जो सेकंड वाला हाउस है उससे रिसोर्सेस लेता है टू बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकम स्ट्रेंथन. नाउ दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट. जैसे कि आपका जो फर्स्ट हाउस है वो लगना है, ओके? यू आर द फर्स्ट हाउस. आप कहां से रिसोर्स लेते हो? आप रिसोर्स लेते हो खाने से, okay? You take resource from your family, you take resource from your earning potential. आपके अंदर भगवान ने एक अर्निंग पोटेंशियल दिए है. अपने फैमिली से आपको अर्निंग पोटेंशियल मिलती है, आपको प्राइमरी एजुकेशन से अर्निंग पोटेंशियल मिलती है. आप एक अर्निंग पोटेंशियल लेते हो, आप किस तरह से बातचीत करते हो, दैट इज योर अर्निंग पोटेंशियल, राइट? सो द फर्स्ट हाउस कैसे जीता है, वो सेकंड हाउस से रिसोर्स लेते हैं, ओके? नाउ यू अंडरस्टैंड सेकंड हाउस कहां से रिसोर्स लेते हैं. how what is the resource, how the third house takes a resource, how fourth house is. So this video is a kind of a magical video. It's a kind of a jadoo video.
You want to learn more? Are you ready? Are you excited to learn? Are you excited to change your life? Are you excited to change your finances? Are you excited to change even your spiritual journey, every aspect of the life? Try to understand, open your heart and soul. Let me tell you another secret, because this is 50th video I'm uploading. I'm getting really excited. How do you understand a subject which is called as astrology? मैंने शुरू के वीडियोस में बताया था, connect your soul, mind, body with this, what you're learning. So say, dear the soul, mind, body of this class. And this is just not limited to this subject. Anything you study, आप कोई भी किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट जब जानना चाहते हो, remember one thing, everything has a soul, mind and body. कोई भी चीज के अंदर ना soul, mind and body. What is soul? Soul is information. मैं जो बात बोल रहा हूँ वो एक information है. There's a kind of a flow which I'm giving it to you. So even if you're studying my technical classes, you can just say, or this video, dear the soul, mind, body of this video, I love you and really appreciate you. You have the power to transform the essence. आपके पास ये power है कि इस वीडियो का जो भी essence है, just transfer it to my message center. There's a message center in our body जिसकी जो information ले सकता है. इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मुनि ऋषि है, लाइक स्वामी विवेकानंद, हु कुड रीड बुक्स आफ्टर बुक्स इन ए स्पीड. कैसे करते थे? उनकी मैसेज सेंटर वाज सो पावरफुल that he could transfer all the message, all the essence of that into one go. You can also do that. Dear the soul, mind, body of this video, I love you, honor and appreciate you. You have the power to transform the essence in my message center. Please do as appropriate. Dear the soul, mind, body of all the houses, of all the rashis, of all the planets, I love you, honor you, appreciate you. Please transform your essence in my message center, and please forgive me or my ancestors for all the mistakes which we have done in this lifetime or any other lifetime. सो अगर आप इतना बोलेंगे और अपने अपने हृदय को, अपने मैसेज सेंटर को ओपन रखेंगे, शायद देयर मे बी सम मिरेकल हैपन एंड यू विल स्टार्ट एबल टू रिसीव, योर सोल विल एबल टू स्टार्ट रिसीव सर्टेन मैसेजेस व्हिच आर बियॉन्ड. मे बी मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको कुछ, वो लोग उसकी जो दुनिया है आप कुछ और समझाएंगे. सो टुडे इज अ मिरेकलस दुनिया, and today I'm going to share you with the secret. Listen to it very carefully, open your heart and soul. Just pause the video, quickly do a soul communication. I'm waiting. Their soul communication, and let it transform to your soul. Okay, welcome back. Okay, I hope you have done very sincere and honestly, because heaven sees your integrity. Heaven sees your way of doing something. आप truthful real life के अंदर जो भी चीज करेंगे ना, बहुत seriously कीजिए. Heaven आपकी intention देखता है हमेशा. तो heaven or the source or the planet stars always see your intention. Okay, that's the most important thing. Okay, let's come back to the topic. So we were talking about the second house. Let me just share the mind map with you. Let me just share not my mind map, one of my files with you that is here, and let me just explain using this. Right. So here is the thing chart. So these Roman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 are houses. ये आपके houses हैं, ये आपकी जिंदगी के भाव है. So इसके बारे में मैंने पहले वीडियो किया है, very short video. I am going to do an extensive video, some extensive video on different भाव of the houses. But today I am trying to do a kind of essence. आप उस essence को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, so that will help you a lot. So that is very very important. So first house क्या है? First house is your Lagna. So Lagna is a very very important house. Lagna is a very very important house of your horoscope. Lagna is you. Lagna is you. Okay, Lagna is you. So आप लग्न हो. Lagna is your physical body. Lagna is your head. अब ये लग्न कहाँ से रिसोर्स लेता है? ये फिजिकल बॉडी कहाँ से आती है? बिकॉज आपका जो लग्न है वो रिसोर्स कहाँ से लेता है? लेट मी जस्ट quickly just share this, use this a little bit. Okay, आपका जो लग्न लेता है रिसोर्स, वो रिसोर्स लेता है इस हाउस से. Okay, let me just I think something, yeah, just give it 2 minutes time. Okay, I'm in a different, because this I'm using Photoshop, and that's why Photoshop I have to be in a layer. So जो लग्न है, ये आपका लग्न है. दिस इज योर फर्स्ट हाउस. ये लग्न है. दिस इज योर लग्न. ये लग्न रिसोर्स लेता है सेकंड हाउस से. द लग्न टेक्स रिसोर्स फ्रॉम द सेकंड हाउस. सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस इज योर फैमिली, जहां पे आप जन्म लेते हो. आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपको बचपन में जो संस्कार मिलता है, जो ट्रेडिशंस मिलती है, आप पिता माता को जो चीज देखते हो, योर रिसोर्सेज, जिस तरह का खाना खाते हो, दिस इज हाउस ऑफ फूड ऑल्सो. सो दिस इज अ हाउस ऑफ योर अर्निंग पोटेंशियल. आपके अंदर क्या पोटेंशियल है? तो जितना इस हाउस, जो भी सेकंड हाउस आपका जितना एक्टिवेटेड होगा,
आपका आपका ये फर्स्ट हाउस, आपका लग्न उतना अच्छा एक्टिवेटेड होता है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कनेक्शंस ऑफ द डॉट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये सेकंड हाउस कहां से कैसे एक्टिवेटेड होता है? आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल, जब आप ग्रो कर रहे हो, व्हेन यू आर राइजिंग इन लाइफ, हाउ यू increase your earning potential, how you behave, how you talk, how you even do anything, how you take care of even your family, your closest resources. आप रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हो, रिसोर्स को कैसे प्रिजर्व करते हो, ओके कैसे आप सर्वाइवल करते हो. सर्वाइवल वो इंसान कर सकता है जो अपनी रिसोर्सेज को कर सकता है. यू यूज द पावर ऑफ द थर्ड हाउस. ये आपका जो थर्ड हाउस है, इसकी पावर आप यूज करते हो. नाउ थर्ड हाउस क्या है? नाउ थर्ड हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. इट्स अ हाउस ऑफ योर सिबलिंग्स, इट इज अ हाउस of your talents. It's a house of the, it's the most important house of the astrology probably, but this is called as the house of your subconscious. ये आपका सबकॉन्शियस है, आपका खुद का सबकॉन्शियस है. सबकॉन्शियस आपको पता है, जिस उसमें जो भी चीज आप प्रोग्राम करोगे, सबकॉन्शियस इज कनेक्टेड टू इन्फिनिटी. उसके बारे में और एक लिंक है इसी चार्ट के अंदर, आई विल टेल यू लेटर ऑन. बट जितना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड होगा, आपका उतना अच्छा लाइफ होगा. सो दिस सेकंड हाउस आपके थर्ड हाउस से लेता है. सो हाउ यू बिहेव with your neighbors, how you behave with your friends, they all thing matters to create your आपकी resources power होती है. जितना पावर आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा, उतना ज्यादा आपका earning potential powerful होगा. So always remember that the second house takes the resources from the third house. अब ये third house को resources कहाँ मिलता है? Third house को resources मिलता है, it gets resources from the fourth house क्या है? आपका घर, आपका सिक्योरिटी, ओके, आपका पीस ऑफ माइंड, आपका मदर. जितनी ज्यादा आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकते हो, जितना ज्यादा आपका घर हैज ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, वास्तु आपका बहुत अच्छा होगा लाइफ के अंदर. जितना ज्यादा आप अपनी मदर का सेवा करोगे, आपका थर्ड हाउस विल स्टार्ट टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द फोर्थ हाउस, बिकॉज दैट्स व्हाई द फोर्थ हाउस. आपका घर बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए लाइफ में. आप घर में पीसफुल रहिए. हाउ यू बिहेव विथ एवरी ईच एंड एवरी कॉन्शियसनेस, ईच एंड एवरी एनर्जी ऑफ योर हाउस मैटर्स अ लॉट. आप किस तरह से बिहेव करते हो, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू. आप अगर घर में प्यार दे रहे हो, शांति दे रहे हो, घर की वातावरण आपका शुद्ध है, पवित्र है, your subconscious will get all the messages. Remember, your environment is powerful than you. So that is why try to create a home, try to create respect for your parents, especially for your mother. I've talked many a times in my other videos that आप जितनी आपकी मदर की सेवा करते हो ना, आपका आपका जुपिटर एक्सॉल्ट होता है. इट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, आई विल टेल यू सम टाइम लेटर, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड आपका सबकॉन्शियस जो सब कुछ है, आप किस तरह से सोचते हो जिंदगी के अंदर, वही तो आपको बनाता है. आज तक अपने जो सोचा है लाइफ में, सोच के देखो. सपोज आज आप लोग स्टक हो कहीं पे जीवन के अंदर, आपकी लाइफ नहीं चल रहा, यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव इनसाइड टैलेंट, बट आप वो चीज नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज यू हैव सर्टेन प्रोग्रामिंग इन योर सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस इज लाइक अ फर्टाइल लैंड. उसमें जो उस तरह की सीड डालोगे, उस तरह की प्लांट निकल के आएगी. अच्छे सीड डालोगे, अच्छा प्लांट ग्रो करेगा. अगर गलत पॉइजनस सीड पड़ना शुरू हो गया एक बार, तो पॉइजनस सीड बन जाएगा. सो द थर्ड हाउस इज अ वेरी वेरी पावरफुल हाउस. इट इज द हाउस ऑफ योर मरकरी. आपका मरकरी उसका लॉर्ड होता है. अगर हम कालपुरुष कुंडली के अंदर देखें, मरकरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. अगर आपने मरकरी को एक बार कंट्रोल कर लिया लाइफ के अंदर, मरकरी, मर्क्यूरियल नेचर, उसको अगर लाइफ के अंदर कंट्रोल कर लिया, सब कुछ. बट वो कहां से रिसोर्स ले रहा है? वो फोर्थ हाउस से रिसोर्स ले रहे हैं. आप जितनी सिक्योर फील करोगे, जितना फुलफिलिंग फील करोगे, उतना आपका जिंदगी बेटर होगा. आप फोर्थ हाउस कहां से रिसोर्स ले रहे हैं? फोर्थ हाउस रिसोर्स ले रहा है आपके फिफ्थ हाउस से. फिफ्थ हाउस किस चीज का आता है? बच्चों का घर होता है, रिस्क टेकिंग वाला घर होता है. आप सोचो बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. आप घर में लौट के आते हो किस लिए? यू वांट टू कम एंड सी योर चिल्ड्रन. दिस इज द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन, दिस इज द हाउस ऑफ योर फन. आप कितने खुश हो, कितनी व्हाट इमोशनल थिंग्स यू आर हैविंग, आप कितने जॉय में हो, कितनी जॉय वाली फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ के अंदर है. Okay, this is a house of your romance also. It's a house of your it's a house of your fulfillment. आप कितनी fulfilled हो. This is also a kind of a house of your creativity. आप creative कैसे, अपने आप को creative कैसे explain करो. This is house of your mind. This is a house of a type of intelligence. Okay, this is a house of intelligence. So that is very very important. So this is also house. If you remember, we talked about the doormat house के बारे में हमने वो किया था, in which we talked about the mind of even of your relative. So this is the house of your mind. आपका mind है, ये आपका mind दर्शा रहा है.
सो आप क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, एवरीथिंग. सो इफ यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, इफ यू टेक केयर ऑफ योर क्रिएटिविटी, आप अपने क्रिएटिविटी को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, रिस्क टेकिंग कर रहे हो, all from the fifth house, you are becoming a good leader from the fifth house. Okay, this is also in the Kalpurusha Kundali. This is the house of Leo. Okay, so आप जितना अच्छा फिफ्थ हाउस को बनाओगे उतना अच्छा आपका लाइफ बनेगा, उतना अच्छा आपका फोर्थ हाउस बनेगा, आपके घर में उतनी अच्छी शांति रहेगी. सो आपने रिस्क लिया. किसके लिए रिस्क लेते हो लाइफ में? पॉजिटिव कैलकुलेटिव रिस्क. जब आप लाइफ में किसी चीज के लिए लेते हो, आप एक्चुअली अपने घर के लिए लेते हो, घर की शांति के लिए लेते हो, बच्चों के लिए लेते हो. तो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड. आई होप you are understanding this magic, you're understanding this jadoo. So please be careful, please be. Then from where does the fifth house take its resources? It takes the resources from the sixth house. अब sixth house क्या है? Sixth house is the house of your health. आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे? आप कोई चीज कैसे कर पाओगे? हाउ विल एबल टू लव? आप चिड़चिड़ा होके आ रहे हो घर से. डू यू थिंक यू विल एबल टू लव योर चिल्ड्रन? डू यू विल एबल टू टेक केयर ऑफ योर ऑफ एनीथिंग? डू यू थिंक यू विल एबल टू टेक रिस्क अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा? The sixth house is also the house of Rog Rin Ripu. It's a house of Rog Rin Ripu. It's a house of disease. It's a house of enemies. It's a house of your depth. Be very very careful with Rog Rin Ripu. आप लाइफस्टाइल ऐसे बनाओ, दिस इज जो कि आपका बेहतरीन बने. आप कम से कम डेप्थ रखिए जिंदगी में. दिस इज ऑल्सो हाउस ऑफ सर्विस. हाउ यू आर डूइंग सर्विस टू अदर. सपोज आप जॉब कर रहे हो, कहाँ पे, किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से जॉब करो. लोगों को जॉब मिलता है, उसके बाद दे फील इनसिक्योर. अरे लाइफ में स्टैग्नेशन आ गया, अरे लाइफ में मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रहा. You should be all the time in a happier state. You're doing a job. Do it sincerely and honestly. एनिमिटी मत रखिए लाइफ के अंदर. लाइक रिड्यूस एनिमिटी. किसी के लिए रिवेंजफुल मत होइए. दिस इज हाउस ऑफ एनिमिटी ऑल्सो. एंड कृपा करके डोंट यूज योर, उतना ही क्रेडिट चाहिए जितना आप उसको सॉल्व कर सकते हैं लाइफ के अंदर. सो बी वेरी केयरफुल विद मनी मैटर्स इन दिस हाउस, बिकॉज अगर आपने ये कमांड अपनी जिंदगी में कर लिया, आपका फिफ्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग होगा. एंड नाउ यू कैन सी द कनेक्टिविटी विच इज कमिंग इवन अप टू द लग्न. सो आई होप you are clear in this case. आपकी सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो योर डेली रूटीन. आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन करते हो, आप किस तरह से अपने हेल्थ, अपने आप को टेक केयर करते हो, किस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को यूज करते हो. डेली चैलेंजेस. इट इज द हाउस ऑफ चैलेंज एंड कंपटीशन. अगर किस तरह से आप अपने लाइफ को चैलेंज एंड कंपटीशन पे रखते हो, एवरीथिंग मैटर्स इन दिस केस. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिक्स्थ. अब क्या है? फ्रॉम वेयर द सिक्स्थ हाउस टेक्स इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम. सिक्स्थ हाउस टेक्स इट्स रिसोर्सेज from the seventh house. ये seventh house आपका it's a house of your partnership. Okay, it is a house of your image. आपकी शक्ति है seventh house. Okay, that's a very important house for you, because the seventh house is your reflection basically. It's a house of your harmony. It's a house of your even open enemies. आपकी जितने भी open enemies है, वो उस house से रिमेंबर करें. How you are dealing with that, it's a very very important house, because this is the house you should be the most careful, because ये house से आपको maximum शक्ति आती है. अगर because this is the house from which आपके wife या husband से आपको energies मिलेगी. That is going to be the Ardhanarishwar theory which is going to work over here. And this is the house of your image. ये आपका image है. This is the house of your image. ये आपका जितना अच्छा आपका इमेज होगा, जितनी आपके ऊपर लोगों की कॉन्फिडेंस आएगी, उतना ज्यादा बेहतरीन आपका लाइफ बनेगा, उतना ज्यादा बेहतरीन आपका सिक्स्थ हाउस बनेगा. एंड यू नो व्हाट इज द कनेक्टिविटी ऑफ दिस हाउस. नाउ व्हाट इज फ्रॉम वेयर दिस हाउस टेक्स द रिसोर्सेज फ्रॉम. Now this is all about the resources. Now the seventh house takes the resources from the eighth house. Eighth house is a very very important house of the horoscope. Try to understand it. The eighth house is a very very important house of the horoscope. It is a house of transformation. The eighth house is a house of transformation, जहां पे आपकी पान अपान ऊर्जा बैलेंस करती है अपने आप को. इट इज अ हाउस ऑफ इनोवेशन. आप किस तरह से अपनी जिंदगी में जब परेशानी आती है, इट्स अ हाउस ऑफ सडननेस. किस तरह से आप जिंदगी के अंदर सडननेस, बट इट कैन गिव यू ऑल्सो सडननेस. आपको कोई सडन चीज मिल सकती है, आपकी जिंदगी के अंदर सडन चीज जा सकती है. इट्स अ हाउस ऑफ इवन थेफ्ट. इट इज अ काइंड ऑफ अ हाउस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस. ये वो वाला हाउस है जो आप लोगों से छुपा के रखते हो. तो इस हाउस में आप जितना बेहतरीन काम कर पाओगे लाइफ के अंदर, उतना ज्यादा आपके सारे हाउसेस इफेक्टेड होंगे. ये एक ट्रांसफॉर्मेशंस का हाउस है. ये हाउस ट्रांसफॉर्म, जब इसकी दशा आती है जिंदगी के अंदर, ट्रांसफॉर्म करते हैं. किस तरह से
आप ट्रांसफॉर्मेशंस को लाइफ में लेते हो, किसने इनोवेशन से उस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हो लाइफ के अंदर, डिपेंड्स ऑन आपका इमेज उतना अच्छा बनेगा लाइफ के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द हाउस ऑफ द पावर डायनेमिक्स, इसके अंदर से पावर डायनेमिक्स शेयर, दिस इज हाउस ऑफ सीक्रेट्स, ओके, दिस इज द हाउस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस लेने के बाद आप किस तरह से अपने जीवन को आपने लिया है, ये सारा चीज दर्शाता है। उसके बाद वाला हाउस क्या है, उसके बाद वाला हाउस, from where this eighth house takes resources, eighth house takes resources from ninth house is a very important house. It is the house of the dharma, it is the house of the religion, it is the house of your bhagya. So आप जितनी ज्यादा धर्म के मार्ग, what is a धर्म, धर्म, we will come to धर्म also, धर्म कहाँ से रिसोर्स लेते हैं, बट जितना ज्यादा आप धर्म के राह में रहोगे, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड द मोर यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्सल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, that is where it is. It is also a house of, one of the houses of your father. Okay, this is the house of your guru. आप किसी चीज सीख रहे हो कहीं से, you're getting a divine knowledge. How here you using the divine knowledge? वो आपके अंदर जो पान अपान ऊर्जा है, दी अपर एंड द लोअर एनर्जीज को एथ हाउस में बैलेंस करने में आपको कामयाब देगा। इसीलिए गुरु जब भी आते हैं, आपके अंदर जितने भी डिसबैलेंसेस होते हैं, उस डिसबैलेंसेस को वो हैंडल करते हैं। ओके, वो डिसबैलेंसेस को हैंडल करने आते हैं। इसीलिए एथ हाउस अपने रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो हाउस ऑफ डेथ। आपका प्राणा रिड्यूस होता है एथ हाउस में जाके, तो प्राणा कैसे एक्टिवेटेड हो सकता है? प्राण के लिए there is a very important point, probably we will talk later on because I'm a sociologist also. There's a point called as kungon in नाभि के अंदर, एक नाभि पद में होता है जहां पे हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर होती है। जितना ज्यादा वो स्पिरिचुअल एनर्जी कम होगा, आपका प्राण शक्ति उतना कम होगा लाइफ के अंदर। तो वो प्राण शक्ति कौन जगा सकता है? योर गुरु can increase the प्राण शक्ति। So the eighth house takes resources from the ninth house। इसलिए जो भी नॉलेज आप सीख रहे हो, try to apply those knowledge in your life. That is most important thing. So try to understand the resource house of the eighth house is the ninth house. Ninth house कहां से resource लेगा? Ninth house is taking the resource from the 10th house. This is the 10th house for which you were born. ये आपका कर्म क्षेत्र है। You know the dharma. Ninth house the dharma. Dharma takes resource from your karma. If you are doing the right karma, nobody can stop your भाग्य to rise, because भाग्य कुछ लोग भाग्य से नहीं पैदा होते, उनको कर्म से भाग्य चूज करना पड़ता है जिंदगी के अंदर। जितना बेहतरीन आप कर्म करोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आपका पसीना पैर में गिरेगा, जितना आपके अंदर भगवान ने जो भी चीजें दी, अभी आपने देखा आपको कितनी सारी चीजें दी है भगवान ने। भगवान इज द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, द सोर्स इज द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, इट इज गिवन मैजिक इन योर लाइफ। सो इफ यू वांटेड टू इंप्रूव योर भाग्य स्थान, एंड भाग्यस्थान कितने सारी चीजों से कनेक्टेड है, डू द राइट कर्मा। प्लीज वेक अप, सी टुडे what all things have you done from morning to evening, okay, what all things have you done ethically, socially, morally, कौन से चीज, what responsibilities have you taken? आपके अंदर एक source blueprint है जिसके वजह से आप पैदा हुए। have you utilized that source blueprint to help one more mankind? Okay, I'm just giving a thing. I'm so happy about these things which I'm sharing at the moment. I'm actually trying to tell you the miracle. 10th house is the house जिसके वजह से आपको सारी चीजें मिलती है। Okay, this is the house you have to finish off to get liberation. Okay, आपका actually this is another science. You are actually born from the 5th house. आप पैदा होते हो from the mother, then you do a karma and leave from the 9th house to the next world. This is another theory, but here we are talking about 9th house कैसे रिसोर्स लेता है। 10th हाउस आपके कर्म से, द मोर बेटर कर्म यू विल डू, द मोर बेटर इट इज। एंड फ्रॉम वेयर the 10th house takes the, from where the 10th house takes the resources from, the 10th house takes the resources from 11th house. Now be very careful. Okay, be very careful here in this case, because 11th house is everything. 11th house आपका लाभ का घर है, आपका लोभ का घर भी है। अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल टॉक इन डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट द 11th। आपका लाभ का घर है, लोभ का भी घर है। इट्स द हाउस ऑफ द गेन एज वेल एज हाउस ऑफ ग्रीड ऑल्सो। वहां से आप वापस गिर सकते हो धरती के अंदर। ओके, बिकॉज उसका नेक्स्ट वाला घर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज अ हाउस ऑफ योर फ्रेंडशिप। ओके, इट इज अ हाउस जहां पे 11th हाउस में आप ह्यूमैनिटेरियन परस्यूट के बारे में सोचते हो। ओके, यू आप पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने की एबिलिटी देता है वो आपको। तो आप जितने भी कर्म कर रहे हो 10वें भाव में, उसका फोकस क्या है? इज इट फोकस ऑन द ग्रीड ऑफ योरसेल्फ, और आप कुछ बड़ा सोच रहे हो? व्हाट इज योर गोल?
Now that your 10th house will get activated if your thought process is very, very high. आपकी collective consciousness is the house of your collective. 11th house is the house of your collective consciousness. So how are you using this collective consciousness? How are you thinking? 11th house is also one of the houses of innovation. Okay, that's a very important house of the innovation. It is a future vision का house है आपका. Okay, वो networking का house है. आपकी कितनी networking? It's also a house जिसमें आप अपनी नई पैटर्न्स बना सकते हो लाइफ के अंदर. सो इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ एन हाउस. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द 10th हाउस टेक्स रिसोर्सेस. सो आप किस तरह से अपनी जीवन के अंदर सोच रहे हो, किस तरह से आप जीवन के अंदर थॉट प्रोसेसेस कर रहे हो. Now that becomes very, very important. Now from where the 10th house takes the resources, the 10th house takes the resources, which is his next house, which is called as the 12th house. Okay, व्हाट इज 8th हाउस. 8th हाउस अगर हम दोबारा रिवाइंड करें, 8th हाउस आपकी सीक्रेट्स है जो आप छुपाना चाहते हो. 12th हाउस इज द हाउस जो भगवान आपसे छुपाना चाहता है. तो समझ जाओ 12th हाउस में क्या क्या चीजें रखी होती है. दिस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दिस इज द हाउस ऑफ द सोल वर्ल्ड. आपके एंसेस्टर्स की दुनिया सब वहां पे पड़ी हुई है. दे आर ऑब्जर्विंग यू ऑल द टाइम. तो 11th हाउस रिसोर्स कहां से ले रहा है? 12th हाउस से रिसोर्स ले रहा है. 12th हाउस बिकॉज दैट इज ऑल्सो. So I talked about the third house. Third house is your subconscious, but subconscious is connected to a superconscious. So it's like a 12th house is like the connection of the subconscious to the superconscious level. Okay. So आपकी undoing की house है. वहां पे आप जाके अपने आप को open करते. It is a house of solitude. आपका अकेलापन का house है. Okay. This is the house of your inner world and inner peace. तो आप कितने अपने आप को inner peace पे रखते हो. So किस तरह से आप spirituality के साथ connected होते हो, किस तरह से आप सारी चीजें fulfill करते हो, किस तरह से you start believing in the house. And let me tell you something more. You know, what is this 12th house? 12th house is also a house of your 12th is a house of your investments. Okay, it is a house of charity. Okay, वहां पे दिस इज ऑल्सो इन द कालपुरुष कुंडली. दिस इज द हाउस ऑफ जुपिटर. आपको बहुत सारे देते हैं. एंड यहाँ पे वेनस एक्सॉल्ट करते हैं यहाँ पे से. तो आप कितनी ज्यादा चैरिटी देते हो लाइफ के अंदर. चैरिटी इज अ काइंड ऑफ अ परमानेंसी. आप कुछ भी जब किसी को दान करते हो, देते हो किसी भी तरह से, वो परमानेंट हो जाते हैं दुनिया के अंदर. इट सील लग जाती है दिस पर्सन एट दिस मोमेंट हैज गिवन समथिंग. कोई भी दुनिया का पावर उस चीज को हटा नहीं पाएगा लाइफ के अंदर से. और आपका 12th हाउस एक्टिवेट होना शुरू होता है. तो 12th हाउस अगर एक्टिवेट होगा तो आपकी 11th हाउस पावरफुल होगी. बिकॉज 11th हाउस टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम द 12th हाउस. और अगर आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो लाइफ के अंदर, इज ऑल्सो हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट. जहां पे अगर आपने करेक्ट तरह से लाइफ में सब जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इन योर एक्शन, इन्वेस्टमेंट इन योर डीड्स, इन्वेस्टमेंट इन योर थॉट्स, इन्वेस्टमेंट विद योर मनी, इन्वेस्टमेंट विद योर बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट विद योर वर्ड्स, आपने राइट इन्वेस्टमेंट किया, the gateways of spirituality might open for you. The gateway of your ancestors might open for you and miracle can take place. आपका जो गेन वाला हाउस है ना, लाइफ कैन बी डिफरेंट. बट यहाँ पे आप उस तरह से नहीं सोच सकते 11th वाले हाउस. बिकॉज 11th वाले हाउस में अगर आपको गेन मिलता है, योर पर्पस शुड बी मच मोर एट. सी पीपल हु हैव बिकम टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड, what kind of thought process have they got. वो कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, कितने लोगों के लिए करते हैं. जितना बड़ा वो सोचेंगे, जितना बड़ा रिवोल्यूशन, जितना बड़ा इनोवेशन, जितना बड़ा चेंज, जितने बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एंगल उसमें सोचेंगे, उनको रिसोर्सेस मिलता है 11th हाउस में. What is resource? Resource also has the word source. RESOURCE. So जब भी आप अपनी thought process में बड़ा सोचते हैं कोई भी चीज, तो आपको ब्रह्मांड आपको रिसोर्स देता है. ओके, तो सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. अब ये 12th हाउस कहां से रिसोर्स लेता है? 12th हाउस टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम द फर्स्ट हाउस. आपसे लेता है रिसोर्स. आप ये सारे चीज कैसे करते हो डिपेंड करता है आपका 12th हाउस, जो आपका मोक्ष वाला, वहां से आप लिबरेट हो गए, वहां से आप निकल गए, और आने की जरूरत नहीं है. ओके, इफ यू आर एबल टू फुलफिल एवरीथिंग. ये जो लग्न, अगर इस लग्न ने सारा काम कर दिया धरती के अंदर, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बोलने में कितना आसान है. सो इट्स लाइक ए स्ट्रिंग. आपकी सारी पर्ल, ये 12 के 12 पर्ल, 12 के 12 मोतियां हमारी जुड़ी हुई है आपकी सारी एक्शंस कर्म के सूत्रों में. सो इट्स लाइक ए 12 पर्ल थिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. सो द 12th हाउस टेक्स रिसोर्सेज फ्रॉम यू, द जातका. आप किस तरह से सारे चीजों में बिहेव करते हो, आप किस तरह से चीजों को रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो, हर एक भाव के अंदर आपका 12th हाउस वैसे एक्टिवेट करता है. हो सकता है अगर आपने ठीक से सारा काम संपूर्ण तरह से किया है, you will be liberated from the 12th house beyond comprehension. You might go, this is 3 dimension, we are living in the 3-dimensional world. हो सकता है 4th, 5th, 6th, you will go back home. That's the thing. I hope today you have understood this, and I have one humble request. You really
think about the 11th house. If you really want that this world to be changed, if you really want to get lot of remedies, अभी आपको समझ में आएगा आपको कैसे रेमेडीज चूज करना है। थोड़ा सा अपने आप में जाके रेमेडीज ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मैं सेकंड हाउस को कैसे एक्टिवेट करूं। खुद से नहीं मिलना है तो मंत्र तंत्र यंत्र में जाइए, वहां से जाके उन चीजों को ढूंढ के लेके। नहीं समझ में आया तो हायर डायमेंशंस के जो एनर्जीज है उनके साथ बातचीत कीजिए, टॉक टू द हायर डायमेंशन गॉड। उस तरह से सोचिए, रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, आत्मा से बात कीजिए, हर एक टाइम अपने सोचिए मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोशिश करूं नहीं करूं, माइंड को एक्टिवेट रखूं, जगह घर को साफ, सारी चीजें मिरेकल्स इसके अंदर छुपी हुई है, जादू है, मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स है। और एक चीज जरूर कीजिए, प्लीज 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 शेयर दिस वीडियोस टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, एज मेनी पीपल एज, दिल से बोल रहा हूं, इस वीडियो को एज मेनी पीपल को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इफ यू रियली वांट टू क्रिएट अ miraculous world. Okay, as the story says, कलयुग is the most important thing. अगर आप इस कलयुग में अच्छा काम करेंगे, बिकॉज दूसरे योग जितने भी उसमें काफी ज्यादा तपस्या करने की जरूरत है, अगर इस कलयुग में आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ अच्छा कर्म कर लिया ना, मुक्ति के रास्ते बहुत फास्ट तेजी से खुल सकते हैं इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होता है, दिस इज माई हाफ सेंचुरी वीडियो, एज आई एम सेइंग 50, सो आई वांट टू गिव यू समथिंग रियली। ये वीडियो खत्म हो गया, जिन लोगों ने देख लिया आप मतलब यू कैन गो टू योर वर्क और वॉट एवर थिंग्स, बट there's an opportunity for some people who really wanted to go ahead. See, I am also a numerologist and I teach very advanced numerology. लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी सिर्फ 9 नंबर का खेल है, मैं नहीं मानता हूँ। न्यूमरोलॉजी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमरोलॉजी डिपेंड ऑन द सन ट्रांजिट, numerology depends on the soul power, then there are a lot of things which is happening, and numerology have a perfect correlation with astrology. ज्योतिष के बिना न्यूमरोलॉजी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कहीं पे। सो सिंस आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई हैव गॉट मेनी कोर्सेज, लाइक 52 कोर्सेज आई हैव गॉट, नॉट ओनली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में आई हैव कोर्स। नाउ कोर्सेज आर फॉर whom? Courses are for those people who have a passion to learn and change their life and change the life of their family, change the life of the people around, who have a great and grander vision, जो उस तरह के जिनका माइंड है, उस जो सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। सो फ्रॉम न्यूमरोलॉजी टू एस्ट्रोलॉजी टू सोर्सोलॉजी, जहां पे कैसे आप अपनी कुंडली को जागरण करेंगे, किस तरह से आप अपने मैसेज सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, जिस तरह से अपने ब्रेन कोड, बॉडी कोड, वी टीच मेनी थिंग, वी टीच डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंड वी डू प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉर देम। दिस आर दिस इज वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द कोर्सेज एट द मोमेंट। मैं एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आई एम सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट द कोर्स दैट इज कॉल्ड एज द ओनली ईयर इन न्यूमरोलॉजी। ओके, ईयर का तत्व, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। आपको ना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में किसी चीज को जरूरत नहीं है, आपको डेट की जरूरत नहीं, मंथ की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेट एंड मंथ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मंथ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज ट्रॉपिकल साइड। ये जो डेट है ना, आपको मैं बताना चाहता हूं कि डेट के अंदर ना जीवन की सारी रहस्य छुपी हुई है, सारी रहस्य। आप किस एलिमेंट से पैदा हुए हैं, आपके अंदर कौन सी, जैसा इस साल आपने देखा इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, एल नीनो इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमिडिटी आसमान छू रही है, आग लग रही है, तो क्यों लग रही है? द सीक्रेट लाइज इन द ईयर। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? लोग इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज उनका ड्राइवर डिफरेंट होता है, बट ईयर के अंदर वो राज होता है, जो राज हेवन डिसाइड करता है आपको क्या करना है लाइफ के अंदर। ओके, एंड व्हाट इज संवत्सरा? अगर आप ज्योतिष हो, आप एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो संवत्सरा यूज करके? अपने जातक को देखा और आप बोल दिया कि कैसे, किस तरह से एक पैटर्न की आफ्टर पैटर्न आपको करेक्शन किया जाता है। हेवन आपका करेक्शन करता है लाइफ के अंदर, आपको मुसीबतें लाता है, आपको लाइफ के अंदर स्टैग्नेशन लाता है, आपकी एक्सीडेंट्स हो सकती है। कैसे होता है? देयर इज अ पैटर्न विच इज फॉलोइंग, बिकॉज द होल मिस्ट्री इज इन द ईयर। ईयर के अंदर सबसे ज्यादा मिस्ट्री होती है। ईयर देख के आप एक इंसान की कंप्लीट चीजें बता सकते हो उसके अंदर, हाउ ही इज बिहेविंग, व्हाट पर्सनालिटी ही हैज टू बिकम, व्हाट इज द पैटर्न विच इज कमिंग, उनकी दशा पैटर्न कैसी चलेगी। एवरीथिंग कैन बी सीन फ्रॉम द ईयर। ईयर इज अ मैजिक। देयर आर 60 कॉन्शियसनेस जो पूरी ईयर को गाइड करते हैं, एंड दे आर द पावरफुल कॉन्शियसनेस। सो दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, आई एम टेलिंग यू, this year, understanding the year is not for everybody, but if you have any intuition insight to study the year, I have a powerful course on year. And if you want to take this course is a very expensive course. It's not an ordinary course because I have a system which I follow. There are many people who are working. There are servers in which things are stored and all. So this is a very expensive course. This is around 20K ka course hai ye. And this is a very powerful course. But today, since I have done 50, I have taken a half century, I'm getting so excited about the thing.
I wanted to give it you at a 50% discount. So whoever wants it at a 50% discount, whoever, मैं repeat कर रहा हूँ, whoever wants it at a 50% discount, you just write a mail to me. उसमें लिखिए YEAR year, just 50 कर दीजिए and send it to satyasourceastrology@gmail.com. So write a mail to me like a year 50 लिख के write a mail to satyasourceastrology@gmail.com. Probably will get it in the description below. आप अगर मेल लिखेंगे, I will show you how to access the case. So remember, this is not this opportunity is not available throughout. Maybe एक दो दिन के अंदर, if I remember, I will just stop it. This is for all the people who are seeing this video, and lucky people will get it. I'm telling you, this is beyond comprehension. Understanding ये जो 60 entities हैं, the things, the powers inside. आपको लाइफ पे क्या बनना है? सपोज आपने जिंदगी में देयर आर पर्सन हु इज डूइंग स्टडीज, जॉब किया, उसने एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस लिया लाइफ के अंदर, फादर ने बोला ये करो वो करो, इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग पसंद, उसके बाद एमबीए करने के बाद ही सडनली चेंज दिस जॉब, ही डिड एन एआई, ये सब करते 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 कुछ भी चीज लाइफ में नहीं हो रहा है, सडनली आपको पता नहीं है देयर इज अ सीक्रेट व्हिच इज लाइंग इन हियर, ही इज एक्चुअली बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द हियर. So it's an unimaginable experience. I don't know. I generally don't speak about my courses because I generally don't give to any XYZ person, but only you should apply to this year thing only अगर आपके मन के अंदर से ना एक आंदोलन होता है ना, अगर अंदर से एक बॉइलिंग चीज होती है कि यस मुझे सीखना है, तभी आप इस चीज को लेके. अगर आपके मन में नहीं होता ना, अगर आपके मन में जरा से भी डाउट लगता है ना, ओह आई डोंट वांट टू डू इट, ओ ये जरा गिमी की होगा और पता नहीं क्या होगा, प्लीज डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीक्रेट सब्जेक्ट. इस पे आपकी प्यूरिफिकेशन हो सकती है, इसके अंदर से आपकी सोल माइंड बॉडी ब्लॉकेजेस रिलीज होती है. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज आप जब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में जाते हो ना, आपके लाइफ में फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग गेट्स प्यूरिफाइड, ब्लॉक्स रिमूव होते हैं. समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. What I am talking about at the moment, probably people will not understand. Many people will not understand. There are certain students of mine, they understand what I am talking about. And I will request them to share below in their comment. सच्ची अपने दिल से लिखना कि what has happened with your life when you have studied these kind of courses with me. I do not let even people enter. इसीलिए बोल रहा हूं, आपके अगर मन से, अंदर आत्मा से आवाज आए कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, तभी करना. I do not want anybody who is weak-hearted to do this course. Okay, that is also I'm telling you, because otherwise, I'm into many things. I'm into artificial intelligence. अगर मुझे इस चीज को देना ही होता ना, मैं आपको पता है क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते, बट बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों मेरे वीडियोस देख रहे हैं. कुछ एल्गोरिदम्स मेरी ऐसी हिट हो रही है कि बहुत, मैं एक्चुअली आई डोंट एक्सपेक्ट अबाउट एल्गोरिदम, बिकॉज फेसबुक, यूट्यूब को भी मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, बिकॉज मैं शायद उतना वो नहीं करता, बिकॉज माई मेन क्रक्स इज टू गिव यू heart to heart talk, to give you message straight to your heart. Okay, that's my thing is, आप चीजों को समझ लो. आप जितनी माइंड से क्लियर होगे, जितने हार्ट से क्लियर होगे, जितने आत्मा से आप क्लियर होगे, उतनी बेटर होगी. वही मेरा पर्पस है. मैं दूसरों के लिए लीड्स जनरेट करता हूं, तो अगर मैं चाहूं, मैं अपने लिए भी बहुत लीड जनरेट कर लूंगा. तो प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट टेक मी. कुछ लोगों ने मेरे को गलत सोचने की कोशिश की थी मेरे बारे में. प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट. इट इज यू. अगर आपके मन के अंदर से कहीं भी ये चीज लग रहा है कि आपको ईयर की जो मैजिक है वो सीखनी चाहिए, हाँ मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे समझना है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, मेरे बॉस जो लोग, किस तरह के आदमी हैं, किस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करते हैं, किस तरह से मेरे पार्टनर बिहेव कर रहे हैं लाइफ के अंदर, किस तरह से मेरी पैटर्न बनेगी, नेक्स्ट ईयर क्या एनवायरमेंट आएगा, नेक्स्ट ईयर हमें केयरफुल रहना है, कौन से पैटर्न में, कौन सी ईयर में आई हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, जिसमें मेरा शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है, मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. This course is for you. Okay, and today I'm thankful. There is a flow which I've got yesterday, but I'm only sharing. You will find me, I generally don't share, but I will share about things, because मैं क्या करूंगा इन चीजों को लेके. But since I have to spend money in that thing, so I will request you for that, because मुझे ये सब सर्वर वगैरह पीछे there are back end में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. So for them we have to take, because and of course आप जब भी spiritually कोई भी चीज लगा, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, इंजीनियर के पास जाते हो, you charge, you give money to them ना, it's called as energy exchange. आप कोई भी चीज फ्री में मत कीजिएगा लाइफ के अंदर अगर आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, बिकॉज उससे आपकी कर्मा कटती है. एंड दूसरी चीज है, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, यू गिव एंड टेक. ही इज कोई एनर्जी आ रही है, आप उसको देने की कोशिश करना. इवन स्पिरिचुअलिटी में हमारे इंडिया में शायद इस चीज की चीज है, जो चीज फ्री में मिलती है, पीपल फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, दैट इज फाइन.
I also want to give it. I also wanted to give, that is fine. But when I am talking about courses, yes, there is a charge of that because there is a उसके अंदर उसको चलाने के लिए एक expenditure होता है, like any other business. That's a kind of a business. So, but today, since I'm very happy that I could launch 50 videos, upload 50 videos, 50 plus video, and today is a kind of I feel like doing a half century. बिकॉज अगर विराट कोहली हाफ सेंचुरी लगाते हैं सब ताली बजाते हैं, तो शायद मेरा दिल आज ताली बजा रहा है, शायद कुछ एनर्जी ज्यादा ताली बजा रही. सो आई थॉट आई विल गिव this thing. I will share with the thing. So I'm going to give you 50% thing. So people who are interested, please send me a mail just write YER50 and send me at satyasourceastrology@gmail.com. I will reply back with how will you make a payment. I will give you the Paytm code and maybe एक दिन लगता है हमारा थोड़ा system. We are still trying to make a we have an automatic process, but there are a lot of things are happening on the banking sector. So we will exactly show you how the way. Give us some time and we will immediately give you the thing. And every course is fully automated. So uske baad koi problem nahi. And our mail ID, everything will be mail ID, entry to our workshops, entry to our webinars, everything will be given. You will be able to, there are only few people who can access my live webinars, by the way. So you will be one of the members of our community, Source community. So that access will be given and you will able to understand all the experiments which is happening inside our community, how we are doing it. So this is something you let your soul decide. Thank you so much for watching. May all the houses, all the house lords, may the stars, galaxies, universe, may all the planets, source bless you, your family, your near and dear ones, your life, your source blueprint beyond competition. Thank you for watching my video. See you in the next video. Take care. Bye-bye.